हाँ जी, ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਲਾਸ 4th ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫੈਕਟਰਸ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 60 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ 60 ਨੂੰ ਕੌਣ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ 60 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਫੈਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਮਲਟੀਪਲਸ। 60 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 60 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ 60 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 60 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 60 ਆ ਗਿਆ, 120 ਆ ਗਿਆ, 180 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 1 ਆ ਗਿਆ, 60 ਆ ਗਿਆ, ਫੈਕਟਰ ਇਹਦਾ 2 ਆ ਗਿਆ, 30 ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ 3 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੈ 20 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰ ਇਹਦਾ 4 ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ 15 ਆ ਗਿਆ। ਫੈਕਟਰ ਇਹਦਾ 5 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ 12 ਆ ਗਿਆ। ਫੈਕਟਰ 6 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ 10 ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 8 9 ਤੇ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਊਗਾ 10 ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ 10 ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ 6 ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜੋ 60 ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਏ ਨੰਬਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਂਡ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ n ਇਕੁਅਲ ਟੂ 150। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ n 150, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ 150 ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਰੇ 75 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ 3 ਤੇ ਉਰੇ 25 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ 5 ਤੇ 5 ਆ ਜਾਊਗਾ, 5 ਤੇ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 1, 2 ਇੰਟੂ 3 ਇੰਟੂ 5 ਇੰਟੂ 5 ਇਹਦੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 1, 3 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 1, 5 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, 150 ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਊਗਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਫਰਦਰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਜੋ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਖੁਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 16। ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 1 2 4 8 ਤੇ 16। ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਬਣੂਗਾ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਇਸ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਰੋਂ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰ ਆਏ ਨੇ, 5 ਫੈਕਟਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੌਰੀ, ਇੱਕ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ 5 ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 5 ਫੈਕਟਰ ਹੀ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, 5 ਫੈਕਟਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 24 ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਲੱਭ ਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਹੈ 2 3
4 6 8 12 24 ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਕੀ ਆ ਗਏ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈजेशन ਕਰਾਂ 24 ਦੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਇਹ 2 ਤੇ ਕੀਤਾ 12 ਆ ਗਿਆ 2 ਤੇ 6 ਆ ਗਿਆ 2 ਤੇ 3 ਆ ਗਿਆ 3 ਤੇ ਕੀਤਾ 1 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਇੰਟੂ 3 ਇਹ ਇਹਦੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈजेशन ਇਹਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਥੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਆ ਸਕਦਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਆ ਸਕਦਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਆ ਸਕਦਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਏ 2 ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਏ ਠੀਕ ਮੈਂ 3 ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਦਾ ਦੋ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ मतलब 4 हो गए टोटल। फिर जो मैं 2 की पावर का कॉम्बीनेशन ये बना दा ये बना दा या फिर मैं 2 की पावर 3 का कॉम्बीनेशन ऊपर से नीचे दोवां ना बना दा तो ये कॉम्बीनेशन बन के ये बन जाएंगे फैक्टर बन गए। देखो किमें जे मान लो मेरे दो कॉम्बीनेशन बन गए तो 2 की पावर 0 इंटू की है 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं कितना आंसर आऊगा 1 आऊगा। 2 की पावर 0 3 की पावर 1 2 की पावर 0 1 होंगे 3 की पावर 1 होंगे 3 तो उरे की आ जाऊगा 3 आ जाऊगा। हम उस तो बाद 2 की पावर 1 तो 3 की पावर 0 मैं यदा कॉम्बीनेशन ये बनाता तो 2 आ जाऊगा यदा कॉम्बीनेशन ये बनाऊंगा 6 आ जाऊगा। उस तो बाद 2 की पावर 2 का कॉम्बीनेशन पहले मैं ये बनाता कितना आ गया 2 की पावर 2 आ गया मतलब कि 4 आ गया। फिर मैं 2 की पावर 2 का कॉम्बीनेशन ये बनाता कितना आ गया जी 12 आ गया। फिर मैं 2 की पावर 3 का कॉम्बीनेशन ये बनाता कितना आ गया 2 की पावर 3 आ गया 8 आ गया। फिर मैं 2 की पावर 3 का कॉम्बीनेशन ये बनाता कितना आ गया 24 आ गया। तो देखो इस तरीके ही कॉम्बीनेशन बन गए तो किन्ने फैक्टर हो गए ये अपने को 3 6 जो 8 फैक्टर हो गए। तो जो मैं हूँ इस चीज़ को मैं डायरैक्टली फाइंड करना हो तो मैं किवें करूँगा आ चीज़ देखा आप कुल किन्ने फैक्टर ने 8 फैक्टर क्योंकि 4 फैक्टर इधरों आए सी कि 2 फैक्टर इधरों आए सी उन्होंने की मल्टीप्लाई करदा कितना आ जाऊगा 8 आ जाऊगा। तो इस तरीके अपने को सारे फैक्टर्स बनते हैं ठीक है जी। हुण जी एग्जाम्पल दे रखी आपां 150 वाली आपां इहनूं समझांगे क्योंकि आपां ने एक क्वेश्चन समझ के आपां इहदे बेस ते बहुत कुछ समझांगे अगे। इस क्वेश्चन को ध्यान समझो अगे हैगा जी 150 है इहदे आपां नूं फैक्टर्स गिवन ने 2 की पावर 1 3 की पावर 1 5 की पावर 2 ठीक है जी। हुण देखो जे मैं इहदे फैक्टर्स बनावां इत्थों मेरे को की आऊगा 2 की पावर 1 तो इहदा फैक्टर किहड़ा होगा 2 की पावर 0 होगा जी 2 की पावर 1 होगा। इस तो बाद 3 की पावर 0 होगा 3 की पावर 1 होगा 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2। तो हुण मैनूं एवें दसो कि इन्हां दोहां तो मिल के किन्ने फैक्टर बनणगे कुल ये फैक्टर बनणगे देखो ये 2 ने तो इनू ये मल्टीप्लाई करूँगा इनू कॉम्बीनेशन ये बन गया अपने को तो उरे 4 कॉम्बीनेशन बन गए टोटल कुल मिला के ठीक है जी। उरे तो हम 4 कॉम्बीनेशन बन गया अपने को हुण जिहड़े 4 कॉम्बीनेशन ने तो हुण इन्हां 4 कॉम्बीनेशन इस दे नाल बनणगे पहला इहदा कॉम्बीनेशन इहदे नाल फिर इहदे नाल फिर इहदे नाल ठीक है जी। फिर इस नंबर का अपना कॉम्बीनेशन इहदे नाल इसदे नाल ते इहदे नाल फिर उस तो बाद इस नंबर का कॉम्बीनेशन इसदे नाल इसदे नाल ते इसदे नाल फिर लास्ट नंबर का कॉम्बीनेशन सारे नाल होगा। तो ये मेरे को फैक्टर की है बन सकते हैं। तो हुण मेरे को असल दे विच हो की रहा है कि तिन्ने चीज़ां इकट्ठियां कंबाइन भी कर सकते हैं। देखो ये किन्ने फैक्टर्स बनते हैं 2 की पावर 0 2 की पावर 1 ये बनते हैं 3 की पावर 0 3 की पावर 1 5 की पावर 0 5 की पावर 1 तो 5 की पावर 2 ठीक है जी। तो हुण इत्थों किन्नी ऑप्शन आ गया मेरे को मैं इत्थों किन्ने हाउ मैनी वेज आई चूज द नंबर फ्रॉम 2 की पावर 0 एंड 2 की पावर 1 मैं किन्ने वेज नाल नंबर चूज कर सकदा 2 वेज ना कर सकदा उरों किन्ने वेज ना कर सकदा मैं उरों भी 2 वे नाल नंबर चूज कर सकदा उरों किन्ने वे नाल नंबर चूज कर सकदा मैं 3 नाल उर मैं 3 वेज चूज कर सकदा तो कुल किन्ने वेज हो गए 12 वेज। तो 12 तरीके नाल मैं
इन्हों के कॉम्बीनेशन बना सकता। ठीक है जी, इस चीज़ का ध्यान रखियो। या फिर एवं समझो इतों कितने कॉम्बीनेशन बननगे, 4 बननगे, तो 4 कॉम्बीनेशन तो अगे पूरे नंबर कितने ने 3 ने, तो उरे कितने बननगे 12 कॉम्बीनेशन बननगे। अगे देखो जी, तो हम आप एक फॉर्मूला सिंपली लिखते हैं कि जे कोई नंबर P है अपने को, कोई नंबर N है, जो फैक्टर बनते हैं P की पावर X इंटू Q की पावर Y इंटू Z की पावर R की पावर Z, कोई ये नंबर होंगे इस तरीके का, तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बनते, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो किन्ने बननगे जी। देखो ये आप एक ऐड करा क्योंकि P की पावर 0 तो लैके P की पावर X तक नंबर होंगे, तो एक टर्म ज़्यादा होंगी है, तो X+1 Y+1 Z+1। ठीक है, ये की है नंबरस ऑफ फैक्टर्स, भी किन्ने फैक्टर इन्हों तो मिलके इस कॉम्बीनेशन तो बन सकते हैं N इक्वल टू P की पावर X Q की पावर Y तो R की पावर Z तो इन्ने नंबर ऑफ फैक्टर्स बन सकते हैं, मतलब कि इन्हों की मल्टीप्लाई करा जी आप सारे ने। ठीक है जी, तो हुण जो अपने को क्वेश्चन सीगा की क्वेश्चन है 150 वाला, ये आप आई थिंक कर चुके। अगे देखो आपने सिर्फ देखो की देखना फैक्टर्स उन्होंने की फैक्टर हो सकता है, तो उन्होंने अगे कॉम्बीनेशन की बननगे, सिर्फ आही चीज़ आप देखी जानी है, तो अपने को नंबर ऑफ फैक्टर्स आई जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी आप, हाँ जी, इस तो अगला क्वेश्चन की है, हाउ मैनी नैचुरल नंबर फैक्टर्स ऑफ N इक्वल टू 72, कहना जे N 720 हो तो ये किन्ने नैचुरल नंबर फैक्टर बननगे। तो देखो 720 करना अपने, पहला पहले की बनावांगे नैचुरल फैक्टर्स, 720 आ गया, तो हम ये कॉम्बीनेशन की बन रहा 2 की पावर 4, इतने बन गया 3 की पावर 2 तो 5 की पावर 1, ये की बन गए फैक्टर्स बन गए। हुण इत्थों आप किन्ने फैक्टर्स बना सकते हैं, मेरे को इत्थों नंबर लैन दी कितनी ऑप्शन ने जी, 5 ऑप्शन ने, उरों कितने नंबर लैन दी कितनी ऑप्शन ने, मेरे को 3 ऑप्शन ने, उरे कितनी ऑप्शन ने 2 ऑप्शन ने, तो 30 फैक्टर उरों की ने अपने को बन जाएंगे 720 के। तो इस तरीके आप नंबर ऑफ फैक्टर्स ने जोड़े वो आप काउंट कर पाने हैं। जी अगे देखो आप अगे नैक्सट एग्जाम्पल करते हैं, ये याद रखियो कि मैं इस एक्सरसाइज इस लैक्चर में सारिया तरह दी क्वेश्चन मैं सारिया तरह की एग्जाम्पल लैके चलूँगा, तो आप बहुत ईजी वे उन्होंने करा। अगे देखो जी नैक्सट एग्जाम्पल, हुण देखो जी अपने तो जो सॉल्व किया वो नहीं देखना है, तुम उरे देखो इन छड़ दो, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स एंड कंपोजिट फैक्टर, कहता किन्ने नंबर प्राइम फैक्टर्स ने तो किन्ने कंपोजिट फैक्टर ने कि 420 के। तो देखो अपन सिंपल की चीज़ करनी है, बहुत आसान चीज़ है ये 420, तो मैं 420 की लिखूंगा, 2 तो डिवाइड किया, तो 420 की बन गया 2 द स्क्वायर 3 की पावर 1 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1, तो ये मेरे को की बन गए ये प्राइम फैक्टर मैंने बना ले। तो हम प्राइम फैक्टर देखो रे कि आ गए, प्राइम फैक्टर कि होंगे जिदे सिर्फ की हो जिदे सिर्फ 2 फैक्टर हो, तो 2 की पावर 2 के 2 फैक्टर बन गए, सॉरी कला उरे 2 आऊगा प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर्स कि आ गए 2 आ गया 3 आ गया 5 आ गया तो 7 आ गया, इन्होंने की बोलिया आप प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर की होंगे जो सिर्फ जिदे सिर्फ 2 फैक्टर हो, तो प्राइम फैक्टर का अपन निकाल लिया कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, इस कटांगे आप कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर के लिए पहला आप कटांगे टोटल फैक्टर कितने आएंगे, टोटल फैक्टर के विचों टोटल फैक्टर कितने आएंगे, देखो उरे 2 की पावर 2 है, तो आपने की करना है उरे लिखा आप 3 लिखा, इसकी पावर 1 उरे आप 2 लिखा,
ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਉਰੇ ਆਪਾਂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 2 ਲਿਖਾਂਗੇ, 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ 2 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 24 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 24 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ 24 ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਆਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ 1 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪੋजिट ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਨਿਕਾਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਪੋजिट ਫੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਕੰਪੋजिट ਫੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਆਣਗੇ, ਟੋਟਲ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ, 4 ਨੇ, 4 ਮਾਈਨਸ 1 ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, 19। ਤਾਂ ਕੰਪੋजिट ਫੈਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 19। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਕੰਪੋजिट ਫੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਨੰਬਰ ਆਫ n ਇਕੁਅਲ ਟੂ 720। ਕਹਿੰਦਾ 720 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੋਣ, ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋਣ, ਕਿਊਬ ਹੋਣ ਐਂਡ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆਇਰ ਐਂਡ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਦੋਨੋਂ ਹੋਣ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 720 ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, 720 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈंने ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆਇਰ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੂਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣ ਜੂਗਾ 0 ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ। 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਤੋਂ ਬਣ ਜੂਗਾ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਤੋਂ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮੈਂ 3 ਲੈ ਆਇਆ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਕੀ ਲਊਂਗਾ, ਸਾਰੇ मैंने की बनाना है, मैंने ये परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर देखने हैं, तो मैं सारे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ही लूँगा। हम उरे बन गए मेरे को 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, उरे बन गए जी 5 की पावर 0, 5 की पावर 2 आप लै नहीं सकते क्योंकि मैक्सीमम पावर 5 की पावर 1 तक है। तो हुण ये सारे मेरे को आ गए जी, मेरे को स्क्वायर फैक्टर आ गए। या फिर मैं की बोल सकता कि जे मैं इन्हों के कॉम्बीनेशन तो बनावा तो ही मेरे को की बन गए, सारे स्क्वायर फैक्टर बन गए। तो इतों मेरे को कितने नंबर ऑफ वेज ने किसी फैक्टर को चूज करने के लिए, कितने वेज ने जी, 3 वेज। उरे कितने वेज ने, 2 वेज। उरे कितने वेज ने, 1। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 मैं कितना आ जाऊगा, 6 आ जाऊगा। तो 720 के 6 फैक्टर है जो होंगे जोड़े की होंगे परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है जी, नैक्सट भी सिंपल है जी। नैक्सट की है की होन, क्यूब होन, परफेक्ट क्यूब फैक्टर जो अपने पता करने होए। तो देखो जी किमें करांगे आप, तो मैं उरे जेडे भी सारे नंबर लऊँगा, मैं की लऊँगा जी, जेडे सारे की होंगे क्यूब की क्यूबिक फॉर्म च होंगे। तो इतों मैं की लै सकदा 2 की पावर 0, 2 की पावर 3, उरों मैं लै सकदा 3 की पावर 0, इस तो उपर मैं लै नहीं सकता क्योंकि जो मैं 3 की पावर मैं 3 लऊँगा तो अपने इस तो उपर लै नहीं सकते। तो 5 की पावर 0 मैं लै सकता। तो उरे की कॉम्बीनेशन बनूगा, उरों सिर्फ अपने को कितने वेज ने चूज करन दे, 2 वेज, उरों 1 वेज ते उरों 1 वेज, कितने हो गए टोटल 4 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जिहड़े की होणगे परफेक्ट क्यूब होणगे वो कितने ने, 4 ने। इस तो अगे देखो किहड़े फैक्टर नैक्सट की है अपने कोले, अ परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर भी होवे, परफेक्ट क्यूब भी होवे, मतलब कि जिहदी पावर 6 होगी वो की हो सकता, एक क्यूब भी होगा तो फिर भी होगा। मान लो मैं 2 की पावर मैं लिखती 3, यदा मैं स्क्वायर करता तो मेरा स्क्वायर हो गया। जो मैं लिखूँगा 2 की पावर 3 इंटू 2 इंटू लिखूँगा 3 तो मेरा क्यूब हो जाऊगा। तो मैनू उरे 2 की पावर 6 वाले फैक्टर देखने पैणगे, या फिर मेरे को उरे की ऑप्शन बन गए 2 की पावर 0 बनू उरे ऑप्शन, उरे बनूगी 3 की पावर 0, उरे बनूगी 5 की पावर 0। तो नंबर ऑफ ऑप्शन कितनी ने, 1 इंटू 1 इंटू 1, सिर्फ एक ऑप्शन आऊगी, सिर्फ एक वैल्यू है अपने को जी, एक नंबर है वही 720 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। तो जोड़ा की है परफेक्ट स्क्वायर भी है तो परफेक्ट क्यूब भी है। बस आपने सिंपल इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो आपको कहा वो अकॉर्डिंग आपने नंबर लिखने ने। पहला आप जो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, फिर आप अकॉर्डिंग जो चीज़ आपको चाहिए है वह कॉम्बीनेशन लिखना है आपने, फिर वो किन्ने कॉम्बीनेशन बन सकते हैं वो चीज़ लिखनी है।
हाँ जी, इस तो बाद जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो की है अपने को, हाउ मैनी सेट्स ऑफ टू फैक्टर ऑफ n इक्वल टू 72 विल बी को प्राइम टू ईच अदर। कहना 72 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਹ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ a ਐਂਡ b, ਇਹ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਇਫ HCF of A and B ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ 1 ਦੇ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ A ਤੇ B ਦਾ HCF ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 1 ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, n ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 72। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ, ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਮੈਂ 12, 12 ਦੇ ਮੈਂ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਤੇ 3 ਤੇ 4, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ HCF ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, 1 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈंने 72 ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ 72 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 × 9 ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬਣੂਗਾ 2 ਦੀ ਕਿਊਬ ਇੰਟੂ 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ HCF ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਪਾਂ HCF ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 1 ਆਊਗਾ। HCF ਆਫ 1 ਐਂਡ ਸਮ ਅਨਦਰ ਨੰਬਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦਾ HCF ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 1 ਹੀ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ 3 ਇੰਟੂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰਸ, ਇਹਦੇ 4 ਇੰਟੂ 3, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਐਡ ਕਰਤਾ, ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਐਡ ਕਰਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 12 ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਨੇ, 4 ਵੇਜ਼ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਇਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇ ਨੇ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 0, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਰੇ 4 ਵੇਜ਼ ਨੇ, ਉਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਜ਼ ਨੇ, 3। ਤਾਂ 4 ਇੰਟੂ 3 ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਫੈਕਟਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰਸ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ, 4 ਇੰਟੂ 3 ਬਣਨਗੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਗਾ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਣਗੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12 ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਉਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 12 ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਧਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈंने ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ, ਉਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਸੀ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ 12 ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ 12 ਨੰਬਰ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਉਰੇ 0 ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਲਿਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ, 3 ਪਾਵਰ 2, 3 ਪਾਵਰ 1 ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, 2 ਲਿਖੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ HCF ਤਾਂ 1 ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤੇ 3 ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ 2 ਤੇ 3 ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ 2 ਤੇ ਕੀ ਹੈ, 3 ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ 2 ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੈਂ 2 ਦੀ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਨੇ, ਕਿ ਉਰੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਵੇਜ਼ ਨੇ, 3 ਵੇਜ਼, ਉਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਜ਼ ਨੇ, 2 ਵੇਜ਼। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵੇਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 6 ਵੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 6 ਵੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, 6 ਫੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਟੋਟਲ 18 ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ, ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੇ। ਤਾਂ 18 ਫੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 72 ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ,
को प्राइम फैक्टर पता करन दा। देखो जे मैं n नूं इस तरीके नाल लिख ला p दी पावर x इंटू p दी पावर y, इस कॉम्बीनेशन च इन्हूं मैं लिख ला तो मेरे को की आएंगे ये फैक्टर्स x+1 इंटू y+1 प्लस x इंटू वाई। आही चीज़ की है मैंने पहला जोड़े 12 पता किए ने, अभी तक पता किए ने 4 इंटू मैं 3 किया, ठीक है जी। 3+1 तो 2+1 की मल्टीप्लाई ही तो की है मैंने पहला, फिर मैंने इन्होंने दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करती, 3 इंटू 2 6 आ गई तो 18 आ गया। तो ये एक फार्मूला है जी जिसे आप कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, मतलब कि जोड़े आप कॉमन फैक्टर सॉरी जोड़े आप को प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं, को प्राइम पेयर जोड़े आप निकाल सकते हैं। तो हुण देखो ये सिर्फ 2 नंबर वास्ते सीगा, जे अपने कोल की है क्वेश्चन एवें दा जिहदे विच p दी पावर x भी होवे, q दी पावर y भी होवे ते नाल r दी पावर z भी होवे, फिर आपां किवें करांगे, ठीक है जी। तो आपां इहदे वास्ते एक नैक्सट क्वेश्चन है वो आपां देख लेंगे। हाउ मैनी सैट्स ऑफ टू फैक्टर ऑफ n इक्वल टू 360 विल बी को प्राइम टू ईच अदर। तो कहता n एक नंबर है जिहदी वैल्यू की 360 है, ये किन्ने सैट्स बननगे दो फैक्टरां दे भी जिहड़े आपस की होणगे को प्राइम होणगे। सब तो पहला मैं की करूँगा जी, n किन्ना 360, इहनूं मैं पहला मैं प्राइम फैक्टराइजेशन दे विच लैके आऊँगा। तो ये बन जू मेरे को 4 इंटू 9 इंटू कितना होंगे 10 होंगे। तो 4 की हो गया 2 का स्क्वायर हो गया, एक 2 इत्थों आ जाऊगा तो 2 की क्यूब होगी, ठीक है जी। इत्थों की आ जाऊगा 3 का स्क्वायर, उरे आ जाऊगा 5 की पावर 1, क्योंकि मैं 10 में 2 पार्ट्स डिवाइड करता 2 ते 5 दे विच। तो की आ गया जी मेरे को 2 की क्यूब, 3 का स्क्वायर तो 5 की पावर 1। मेरे को की आ गया जी प्राइम फैक्टराइजेशन मैं कर ली। हुण पता करना भी किन्ने ये को प्राइम पेयर बननगे। पहला मैं इत्थों निकालूंगा ये पेयर किन्ने बननगे, पहला मैं सिंपली इन्हां दोवां तो निकालूंगा भी किन्ने मेरे को पेयर बनते हैं। तो मैं किवें पता करूँगा जी, इस मैं एक ऐड करूँगा, पहला मैं 4 इस एक ऐड करूँगा 3 मल्टीप्लाई प्लस इन्हां दोवां की मल्टीप्लाई 3 इंटू 2, तो किन्ने बन गए जी इन्हां दोवां तो मिलके 12 प्लस 6 18। तो मेरे को कोई ए की पावर 18 आ गया, कोई एक मैं नंबर ले लिया ए की पावर 18, तो मैंने हुण कंबाइन करना है 5 की पावर 1। तो मेरे को उरों किन्ने को प्राइम पेयर बननगे, ठीक है जी। 18 पेयर तो मेरे को इत्थे बन चुके जिहड़े को प्राइम ने आपस दे विच। तो हुण जिहड़े 18 ए की पावर मैं 18 चूज की है उसनूं मैं इहदे नाल भी देखूँगा, तो इत्थों किन्ने आउणगे, इनू ऐड करूँगा 19 आ जाऊगा, उरे आ जाऊगा 2 38 हो गए जी, प्लस इन्होंने दोवां की मल्टीप्लाई 18। तो 18 प्लस 18 सॉरी 38 आऊगा जी, 38 प्लस 18 48 तो किन्ने बन गए 56 बन गए। तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ सैट किन्ने आ गए 56 आ गए। ये 18 नहीं आएंगे जी, क्योंकि जिहड़ा ये 18 आए सी ये तो आप इधर मूव करके इनू लैके जा चुके हैं आप इधर, ठीक है ना। वो मतलब कि कॉम्बीनेशन के सारा कुछ बिच ही अपने आप हो जाऊगा। देखो जो उरे 18 आए ने, ये 18 जो अपने को कॉम्बीनेशन बन गए, ये तो वो ने तो वो तो अगे किन्ने कॉम्बीनेशन बन गए आप 5 की पावर 1 लैके आप दोबारा फॉर्मूला ला के आप बना सकते हैं। तो मेरे को आंसर 56 ही आऊगा, ये मेरा फाइनल आंसर यही होगा 56, ठीक है जी। मतलब कि जे अपन कुल पी के आर तिने आ जाते हैं तो पहले आप 2 ते लगाना, फिर आप जिन्ना आंसर उत्थों आऊगा फिर आप नैक्सट ते लगाना। अगे देखो जी नैक्सट की है अपने को फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ n इक्वल टू 72। तो आप पढ़ना सम ऑफ फैक्टर्स। तो हम आप सम किमें करांगे फैक्टर्स का, आसान है जी बिल्कुल। देखो पहला मैं n इक्वल टू 72 है 720 सॉरी, तो पहला मैं प्राइम फैक्टराइजेशन के डिवाइड करूँगा। तो यह होगा जी अपने को 8 इंटू 9 इंटू 10 होगा, तो यह बन जाऊगा 2 की पावर 4 3 स्क्वायर 5 की पावर 1, ठीक है जी। 16 5 80 80 9 100 80 9 720।
तो हुण देखो जी ये मेरे को बन गए इन्हां दे प्राइम फैक्टराइजेशन मैं इन्हां दी कर चुकिया। हुण नैक्सट मैं की चीज़ करनी है ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਤੇ 3 ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 0, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, 5 ਚੋਂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਤੇ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿੰਗਲ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਫੈਕਟਰ ਪਤਾ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਨਗੇ ਸਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਮ ਆਫ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਨਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 12, ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਬਣਨਗੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਸੌਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਇੰਟੂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਬਣਨਗੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਪਲੱਸ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 12 ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ 2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਇੰਟੂ 3 ਬਣਨਗੇ ਫੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। देखो जी किमें कॉम्बिनेशन बननगे पहला जो मैं 2 की पावर 0 है 2 की पावर 1 है 2 की पावर 2 है 3 की पावर 0 है 3 की पावर 1 है। पहला मैं यदा कॉम्बिनेशन इन्होंने दोहां ना बनाऊंगा तो की बनूगा मेरे को कि फैक्टर आ गए 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0। नैक्सट आ गया 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 ये फैक्टर बन गया मेरे को। नैक्सट हूँ मैं 2 की पावर 1 का इन्होंने दोहां कॉम्बिनेशन बनाऊंगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। फिर मैं इन्हें दोहां बनाऊंगा 2 की पावर 2 का 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो ये सारे मेरे को की बन गए फैक्टर बन गए। ठीक है जी मैं इन्होंने सम किया होया विच मैं प्लस लगा रहा तो मैं इन्होंने एक लाइन च लिख लेना। तो देखो जी तो हुण जे मैं यही चीज़ नूं एवें लिखिया हुंदा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। तो सेम यही चीज़ मेरी इस चीज़ नूं उपर वाली चीज़ नूं की कर रही है रिप्रजेंट कर रही है। ठीक है मतलब कि जे मैं सम निकालना होगा तो मैं डायरैक्ट इस तरीके नाल भी निकाल सकता। ठीक है जी तो देखो पहला 2 की पावर 0 मेरी ये कंबाइन होगी आ टर्म आ जाएगी फिर ये कंबाइन होगी सिमिलरली ये इस कंबाइन होगी फिर ये इन्हां नाल कंबाइन होगी। तो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट चीज़ है। तो मैं इन्हां सम किवें करूँगा होर चीज़ देखो अगे आपां इहनूं होर शॉर्ट करांगे। हुण तुहाडे याद हो एक जीपी सीरीज़ आपां पढ़दे हुंदे सीगे तुसीं देखो ध्यान नाल जीपी सीरीज़ बन रही है ये भी जीपी सीरीज़ है एक ये भी जीपी सीरीज़ है। ठीक है जी तो हुण मैं जीपी के सम का फॉर्मूला की होंदा जीपी मीनस होंदा ज्योमैट्रिकल प्रोग्रेशन मतलब कि जो पहला उरे की सी 2 की पावर 0 सी इनू मैं 2 नाल मल्टीप्लाई करता 2 की पावर कितनी होगी 1 होगी फिर मैं 2 नाल मल्टीप्लाई करता 2 की पावर कितनी होगी 2 होगी फिर मल्टीप्लाई करता 2 की पावर कितनी होगी 3 होगी फिर कितनी होगी 4 होगी। तो मेरे को एक जीपी सीरीज़ है। ठीक है जी एक मैं निकालता सी कॉमन रेशो की होंगी है जे मैं इसनूं इहदे नाल डिवाइड कर दूंगा मेरे को कॉमन रेशो आ जाऊगी। सिमिलरली इतों कॉमन रेशो आ जाऊगी ये भी 2 है तो कॉमन रेशो कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो हुण इन्हों ऐड करने का एक फॉर्मूला होंदा सी अपने कोल जिहनूं आपां की कहंदे सीगे सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला की है जी वो ध्यान जीपी का फॉर्मूला होंदा जी अपने कोले ए आर दी पावर n-1 डिवाइड बाय
आर माइनस वन। ए की होंगी है फस्ट टर्म होंगी है टर्म वन, जिमें आ मेरे को की है फस्ट टर्म है कितनी है टू दी पावर जीरो है। तो इन्होंने सारे क्वेश्चन के फस्ट टर्म कितनी आऊगी टू दी पावर जीरो आऊगी या किसी की पावर जीरो आऊगी तो कितनी होंगी है वन होंगी है। तो मैं इन्होंने क्वेश्चन के ए नू छोड़ दूँ क्योंकि ए हर हमेशा जो मैंने सम ऑफ फैक्टर्स निकालना तो कितनी आऊगी वन ही आऊगी। तब उरे की लिख लूँगा वन लिखूँगा। आर की होंगी है कॉमन रेशो कितनी है जी टू है, मतलब कि मैं सैकेंड टर्म में फस्ट टर्म नाल डिवाइड कर दूंगा कितना आ गया टू आ गया और कॉमन रेशो होगी। एन होंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आनी है जी फाइव आनी है। माइनस वन लिख लूँगा मैं, नीचे लिखूंगा मैं टू माइनस वन, टू मेरी की सी आर तो कितना आ गया जी मेरे को टू दी पावर फाइव माइनस वन नीचे आ जाऊगा वन। तो ये मेरे को इन्हों का सम हो जाऊगा समेशन हो जाऊगा इन्होंने सारिਆਂ का। चैक भी आप एक बार कर लें। टू दी पावर फाइव कितना होंगे जी 32 होंगे, माइनस वन कर देंगे जे वन है तो कितना आ गया 31 आ गया। उरो चैक कर लो जी आ टर्म कितनी आऊगी 16 आऊगी, नैक्सट कितनी आ जाऊगी 8 आ जाऊगी, नैक्सट 4 आ जाऊ, नैक्सट आ जाऊगी 2 आ जाऊ, नैक्सट 1 आ जाऊ। 16 24 ਤੇ 4 28 ਤੇ 2 30 ਤੇ 31 31 आ रहा जी उरे उरे भी 31 आ रहा। इट मीनस अभी ये अपना की है फॉर्मूला बिल्कुल सही। ठीक है जी। तो हुण मैंने इन्हों का सम करने के लिए की करना है, मैं सिंपल की देखूंगा कितनी टर्म्स ने 5 टर्म्स ने टू दी पावर 5 माइनस वन नीचे 2 माइनस वन बिच मल्टीप्लाई हैगी है तो मैं लिखूंगा डायरैक्टली 3 दी पावर 3 माइनस वन नीचे 3 माइनस वन ऊपर 5 दी पावर जीरो है। इनू आप मैं सिंपल सॉल्व कर देना 1 प्लस 5 कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है जी। तो ये मेरे को बन जूगा 2 दी पावर 5 माइनस वन बन जूगा 31, ये बन जूगा 3 का क्यूब 9 सॉरी 27 माइनस वन 26 27 माइनस वन कितना आ जाऊगा 26 इंटू 6 तो इतने लावे 5 सॉरी तो समेशन कितना आ गया जी मेरे को 2 दी पावर 5 माइनस वन 3 दी पावर 3 माइनस वन 5 दी पावर 2 माइनस वन नीचे की आ जाऊगा 2 माइनस वन 3 माइनस वन 5 माइनस वन। तो जब मैं सॉल्व करूँगा 31 इंटू 26 इंटू 24 नीचे आ जाऊगा 1 2 4 4 नाले कैंसिल हो जाऊगा 2 कैंसिल हो जाऊगा 3 आ जाऊगा। तो हम मेरे को बच गया 93 इंटू 26 26 दिया होंगे 78 7 की आ जाएंगे कैरी 26 गुना 9 54 14 5 1994 ਤੇ 7 201 9 ਚ 54 5 18 ਦੇ 5 23 241 ਤੇ 2418 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਹੀ ਆंसर ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮ ਆਫ ਫੈਕਟਰਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੈਕਸਟ फाइंड द सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स कंपोजिट फैक्टर इवन फैक्टर्स एंड ऑड फैक्टर ऑफ n इक्वल टू 720। तो देखो जी की क्वेश्चन है हुण इहदे विच आपां ने चारे क्वेश्चन आपां लैके चल रहे हैं। पहला आपां एक नंबर है 720 ਉਹਦੇ पहला आपां प्राइम फैक्टर का सम पता करना फिर ਉਹਦੇ कंपोजिट का फिर ਉਹਦੇ इवन फैक्टर का ਤੇ फिर ऑड फैक्टर का। देखो जी किवें करांगे सब तो पहला आपां करांगे प्राइम फैक्टर का। तो 720 ਦੇ प्राइम फैक्टर की होंगे बिल्कुल आसान है जी। ਆਪਾਂ पिछले क्वेश्चन भी यही नंबर ਤਾਂ लिया क्योंकि अपने को थोड़ा ईजी हो जाए। तो 2 ਦੀ पावर 4 3 स्क्वायर ਤੇ 5 ਦੀ 1 ਹੁਣ देखो ये सम ऑफ पहला की पता करना प्राइम फैक्टर। तो कितना आ जाऊगा जी ये कि आने फैक्टर 2 + 3 + 5 भी आने तो यह आ जाऊगा 10। तो 10 अपने को की हो गया सम ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सैकेंड पार्ट सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर। पहला मैं पता करांगे सम ऑफ ऑल फैक्टर।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਫੈਕਟਰਸ ਦਾ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਉਰੋਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਮਾਈਨਸ 1, ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਮਾਈਨਸ 1, 5 ਦੀ ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ 1, नीचे आ जाऊगा जी 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 5 माइनस 1। तो ये बन जाऊगा 31 इंटू 26 24, नीचे 2 सॉरी नीचे आऊगा 1 इंटू 2 इंटू 4, तो कैंसिल होकर 4 आ जाऊगा। ठीक है जी, तो ये मेरे को बन जाऊगा 31 गुना 104। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 31 31 ਉਰੇ 26 ਆਇਆ ਸੀ, ਉਰੇ 5 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ 1 24 ਆਇਆ ਸੀ, ਉਰੇ 1 ਆ ਗਿਆ, ਉਰੇ 2 ਆ ਗਿਆ, ਉਰੇ 4 ਆ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ ਉਰੇ ਕੀ ਹੈ 3 ਆਊਗਾ, ਉਰੇ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਰੇ 3 ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ 93 ਇੰਟੂ 26, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯਾਦ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 2418 ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਮ ਆਫ ਕੰਪੋजिट ਫੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਸਮ ਆਫ ਕੰਪੋजिट ਫੈਕਟਰ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦਾ ਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਫੈਕਟਰ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਕੰਪੋजिट, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਸਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ, ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਕੰਪੋजिट ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ 1 ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ 2418 ਜੋ ਆਪਾਂ 11 ਮਾਈਨਸ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 2401। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਮ ਆਫ ਕੰਪੋजिट ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਮ ਆਫ ਈਵਨ ਫੈਕਟਰਸ। 720 ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਫੈਕਟਰਸ ਦਾ ਸਮ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, n ਇਕੁਅਲ ਟੂ 720 ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸਮ ਆਫ ਈਵਨ ਫੈਕਟਰਸ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣੀ ਸੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਮ ਆਫ ਈਵਨ ਫੈਕਟਰਸ। ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਫੈਕਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਦੋਂ ਬਣੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਈਵਨ ਆਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ 5 ਇੰਟੂ 2 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਈਵਨ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਇੰਟੂ 3 ਇੰਟੂ 3 ਇੰਟੂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕੀ ਆਊਗਾ ਈਵਨ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਈਵਨ ਫੈਕਟਰਸ ਲਊਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4। इधरों लूँगा मैं 3 ਦੀ पावर 0, 3 ਦੀ पावर 1, 3 ਦੀ पावर 2। उरे लूँगा जी मैं 5 ਦੀ पावर 0, 5 ਦੀ पावर 1। जे मैं इन्हों कंबाइन करूँगा तो मेरे को सारे ईवन फैक्टर्स ही आएंगे, क्योंकि जे मैं यदि मल्टीप्लाई पहले ये करूँगा या फिर ये करूँगा या फिर इधरों ये करूँगा तो मेरे को ईवन फैक्टर आऊगा। सिमिलरली जे मैं यदि मल्टीप्लाई पहले ये करती फिर उदू बाद ये करूँगा तो भी ईवन फैक्टर आऊगा। तो इट मीनस मैंने इन्हों के कॉम्बीनेशन ही बनाने ने या फिर इन्हों का सम करना है। मैं सम किमें करूँगा 2 ਦੀ पावर 1, 2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, 2 ਦੀ क्यूब, 2 ਦੀ पावर 4 इंटू 3 ਦੀ पावर 0 प्लस 3 ਦੀ पावर 1, 3 ਦੀ पावर 2 इंटू 5 ਦੀ पावर 0 इंटू 5 ਦੀ पावर 1। इस चीज़ में मैं सॉल्व करना, मेरे को क्या आ जाएगा सम ऑफ ईवन फैक्टर्स का। ठीक है जी। ਹੁਣ जीपी सीरीज़ बनती है या तो आप डायरैक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि 16 ਤੇ 8 24 ਤੇ 2 24 ਤੇ 4 28 ਤੇ 2 30 ਐਵੇਂ भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप बाय फार्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला किमें लावांगे जी, ए
कितने टर्म्स ने 4 टर्म्स ने आर कितनी है 2 दी पावर 4 माइनस 1 नीचे 2 माइनस 1 इंटू 3 दी पावर 3 माइनस 1 नीचे आ जाऊगा 3 माइनस 1 और आ जाऊगा 5 दी पावर 2 माइनस 1 नीचे आ जाऊगा 5 माइनस 1 तो मेरे को बन जाऊगा 2 दी पावर 4 कितना होंगे जी ये 16 माइनस 1 15 गुणा 2 कितना आ गया 30 आ गया नीचे तो एक है ही अपने को इतने आ जाऊगा 27 माइनस 1 26 26 बटे 2 13 25 माइनस 1 24 बटे 4 6 तो 78 गुणा 3 करना जी मैं 78 गुणा 30 करके मेरे को आंसर आ जाऊगा 8 या 24 2 7 21 22 23 2340 को की आ गया सम ऑफ ईवन फैक्टर्स आ गया ठीक है जी सम ऑफ ईवन फैक्टर कितना आ गया 2340 हूँ मैं पता करूँगा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स सम ऑफ ऑड फैक्टर्स देखो जी बिल्कुल आसान कॉन्सैप्ट है मैं की करना हूँ मैंने जिदे नाल मेरा ऑड नंबर नहीं बनू वो चीज़ नहीं मैं लैनी है मैं सिर्फ ऑड फैक्टर्स लैने ने देखो मेरा जो नंबर 3 भी ऑड है 5 भी ऑड है इतों मैंने कोई दिक्कत नहीं जी 2 दी पावर 4 है इनू मैं लै नहीं सकता है पूरे मैं सिर्फ की लूँगा 2 दी पावर 0 लै सकता क्योंकि इसकी वैल्यू होंगी है 1 इंटू 3 का स्क्वायर सॉरी 3 दी पावर 0 3 दी पावर 1 3 दी पावर 2 पूरे लूँगा मैं 5 दी पावर 0 5 दी पावर 1 प्लस 5 दी पावर 1 तो जो मैं मैनुअली सॉल्व करना तो भी आसान हो जाऊगा क्योंकि बार बार जीपी का लगाने की लोड़ नहीं फार्मूला पूरे 1 आ गया 12 प्लस 1 कितना आ गया 13 आ गया 5 प्लस 1 कितना आ गया 6 आ गया तो 78 बन गया ये मेरे को की आ गया सम ऑफ ऑड फैक्टर आ गया ठीक है जी जो आप आपस से ऐड कर दिया तो मेरे को की आ जाऊगा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आ जाऊगा तो कितना आ जाऊगा 2340 प्लस 78 2418 अपने क्वेश्चन किया लास्ट क्वेश्चन के 2418 आया सीगा तो हुण भी आ गया ठीक है जी इस तरीके नाल आपां इन्हां नूं कर सकते हैं या फिर जो तुसीं ईवन फैक्टर का सम निकाल लिया तुसीं की कर सकते हो ऑल फैक्टर का सम निकाल के ईवन का माइनस कर दो तो की आ जाऊगा सम ऑफ ऑड फैक्टर आ जाऊगा ठीक है जी तो इस तरीके का क्वेश्चन सीगा जिहदे अपने को 4 पार्ट कवर हो गए आपां नूं इहदे विच की पता लग गया कि आपां ने जे आपां नूं की पुछ ले सम ऑफ प्राइम फैक्टर कंपोजिट ईवन फैक्टर ते ऑड फैक्टर चारे आपां ने क्वेश्चन ठीक है जी ये अपने कवर हो गए तो इस तो अगे आप देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर नैक्सट है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ n इक्वल टू 72 आर डिविजिबल बाय 10 बी पार्ट है डिविजिबल बाय 10 बट नॉट डिविजिबल बाय 20 एंड सी पार्ट है डिविजिबल बाय 20 बट नॉट डिविजिबल बाय 10 तो बिल्कुल आसान है जी देखो n एक नंबर है 720 तो मैंने वो फैक्टर पता करने जोड़े की है 10 के डिविजिबल होंगे तो देखो पहला जी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन जो करा 2 दी पावर 4 3 का स्क्वायर तो 5 की पावर 1 आऊगी तो हम देखो मैंने वो फैक्टर चूज करने जिहदे 10 की जोड़े 10 से डिवाइड हो तो 10 से डिवाइड हो तो मैनू की चाहिए एक मैनू 2 की लड़ होंगी है घट्टो घट्ट 1 2 आ भी आए तो 1 5 भी आए बाकी जो कुछ मर्जी आई जाए क्योंकि जो 2 तो 5 मल्टीप्लाई होंगे तो 1 10 बनूगा तो वो नंबर जो बन जाऊगा 10 से डिविजिबल होगा तो हम देखो मैं 2 की पावर 0 नहीं चूज कर सकता तो मैनू 2 की पावर 4 वास्ते मैनू 2 की पावर 1 भी आ जाए चाहे 2 आ जाए चाहे 2 की पावर 3 भी मैं ले सकता 2 की पावर 4 भी चूज कर सकता 5 की पावर मैनू 0 नहीं मैं चूज कर सकता मैनू 1 चाहिए एटलीस्ट तो उस तो बाद आ गया 3 का स्क्वायर 3 की पावर स्क्वायर ली मैनू पूरे जो मर्जी आ जाए क्योंकि जो मेरे को 2 तो 5 आ गया तो बाकी जो मर्जी आई जाए मैनू कोई दिक्कत नहीं तो हम मैं पूरे मेरे को नंबर ऑफ वेज कितने ने चूज करने के लिए 4 वेज 4 पूरे कितने वेज ने 1 पूरे कितने ने 3 तो कितने फैक्टर आ गए 12 तो टोटल 12 फैक्टर बनने जो 720 के जो मतलब कि जो 700 जो अपने को 10 से डिवाइड हो गए मतलब कि 720 के टोटल 12 फैक्टर ने जोड़े की 10 से डिवाइड हो सकते हैं इस तो इलावा कोई फैक्टर नहीं है नैक्सट की है डिविजिबल बाय 10 बट नॉट डिविजिबल बाय 20 10 तो डिविजिबल हो पर 20 तो ना हो ठीक है जी तो देखो बिल्कुल आसान है जी वैसे आप मूँह जबानी भी कर सकते हैं सैकेंड पार्ट का देखो की है सैकेंड पार्ट जे 20 किमें बनूगा जी जे 2 की स्क्वायर तू 5 नाल मल्टीप्लाई होगी तो ही तो 20 बनूगा तो मैं की करना है
ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਊਂਗਾ, ਸਿਰਫ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਲਊਂਗਾ, 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਲਊਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 10 ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੇ ਕਰਨਾ ਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਤੇ 5 ਦੀ ਵੀ 1 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 0, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, ਤਾਂ ਉਰੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ 1, ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਣਗੇ 1 ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਰੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 3, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ 3 ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ 10 ਆਊਗਾ, ਇੱਕ 30 ਆਊਗਾ, ਇੱਕ 90 ਆਊਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏ ਬਟ 20 ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਡਿਫੀਕਲਟ ਨੇ ਬਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 20 ਬਟ ਨੋਟ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 10, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 20 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 10 ਨਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਕੀ ਹੈ 20 ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਦ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, n ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 ਇੰਟੂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਇੰਟੂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਇੰਟੂ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 8, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ n ਆਰ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 50 ਬਟ ਨਾਟ ਬਾਈ 100। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ n ਦੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਟ 100 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੇ 50 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, 50 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 5 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਇੰਟੂ 2, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ 2 ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 5 ਮੈਂ 3 ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ 2 ਮੈਂ 1 ਰੱਖਾਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 125 ਗੁਣਾ 2 ਬਣ ਜੂਗਾ 250 ਬਣ ਜੂ, 50 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਬਟ 100 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਦੇ ਪਾਵਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 5 ਦੇ 2 ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਮੈਕਸਿਮਮ। ਕੀ ਮੈਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ 5 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ 100 ਬਣ ਜੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ 4 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਸੌਰੀ 100 ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1 ਰੱਖੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 50 ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਫਿਰ ਉਹ। ਤਾਂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਹੋਵੇ, 3 ਹੋਵੇ, 4 ਹੋਵੇ, 5 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 6 ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ 6 ਆਪਾਂ ਟਰਮਸ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 6 ਟਰਮ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਨਗੇ ਜੀ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਤੱਕ ਹੈ, ਆ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 8, ਮੈਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। 2 ਦੀ ਮੈंने सिर्फ 1 पावर ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ मैं 5 ਦੀ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਰੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ, 1 ਆਊਗਾ। ਉਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ 2 3 4 5 6, 5 ਵੇਜ਼ ਆ ਗਏ। ਉਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੇਜ਼ ਆ ਗਏ 6 ਵੇਜ਼ ਆ ਗਏ। ਉਰੋਂ ਆ ਗਏ 9 ਵੇਜ਼। ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, 9 6 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 54, 54 ਇੰਟੂ 5 250, 270। ਤਾਂ 270 ਨੰਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ 50 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣਗੇ ਬਟ 100 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ 270 ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ 50 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨੇ ਬਟ 100 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। Number of ways in which a composite number n can be resolved into two factors such that n equal to product of two factor। देखो की है मेरे को, मान लो एक मेरे को नंबर है जी 12, तो ये फैक्टर की बन सकते हैं, 1 बन सकता है, 2 3 4 6 ਤੇ 12।
ਇਹਦੇ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੈਕਟर्स आ गए। ਹੁਣ मैं की देखना है, नंबर ऑफ वे इन विच कंपोजिट नंबर n कैन बी रिजॉल्व, कंपोजिट नंबर है n रिजॉल्व इनटू टू फैक्टर सच दैट n इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। तो कॉम्बीनेशन किवें बनणगे, देखो की बनणगे, एक ते 12 का कॉम्बीनेशन बन जाऊगा। तो सब तो पहला एक का कॉम्बीनेशन बनूगा 12 नाल, 2 का कॉम्बीनेशन बनूगा 6 नाल, 3 का कॉम्बीनेशन बनूगा 4 नाल। तो किन्ने अपने को आ गए, किन्ने सैट बन गए, टोटल किन्ने सैट बन गए 3। मतलब कि 12 के 2 फैक्टर यहो जे होण जिन्हां दी मल्टीप्लाई 12 बनती हो। ठीक है जी, आप 12 सिर्फ 2 फैक्टर के डिवाइड करना जिन्हां दी मल्टीप्लाई 12 बनती हो, तो यहो जे सैट किन्ने ने 3। तो किवें पता करांगे जी, आप जिन्ने नंबर ऑफ फैक्टर्स होणगे उहदे किन्ने फैक्टर आए सी, 6 फैक्टर, उसनूं आपां 2 ते की कर दांगे डिवाइड कर दांगे, किन्ना आ जाऊगा 3 आ जाऊगा। 3 आ गया जी अपने कोले। तो उरे की सीगा, उरे 2 केस बनणगे, वैन n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो n की है परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैगा, उरे 12 किसी भी नंबर का स्क्वायर तो नहीं है, तो इस करके ये वास्ते एक कंडीशन अप्लाई होगी। तो जो n की है एक, जो n किसी नंबर का कोई जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर होगा, जिमें कि 16, तो जो आप 16 के पेयर बनावांगे तो वो वास्ते फार्मूला डिफरेंट हो जाऊगा, +1/2 आऊगा। देखो जी किमें 16 के बन गए फैक्टर 1 ते 16 एक पेयर बन गया, 2 ते 8 बन गए पेयर। ठीक है जी, इस तो अलावा फैक्टर ये पेयर बनूगा 4 ते 4 पेयर बनूगा। ठीक है जी, तो ये वास्ते किन्ने पेयर बनणगे, सिर्फ अपने कोले 2 पेयर बने, सॉरी 3 पेयर बनणगे। ठीक है जी, हुण देखो पर जे आपां इहदे फैक्टर काउंट करिए उहदे की दिक्कत आ जाती है, स्क्वायर वाले मामले दे विच 16 इहदे फैक्टर किहड़े होणगे 1 2 4 8 ते 16, इहदे फैक्टर ही 5 बनते होंगे ने, बट इहदे पेयर किन्ने बनणगे, क्योंकि उरे की दिक्कत आ जाती है, जो 4 × 4 होंदा है उरे इक्को ही रह जाता, जिवें उरे आपां कीता सीगा 1 × 12 कीता सीगा, 2 × कीता 6 कीता, फिर 3 × 4 कीता, उरे 4 × 4 होके ये इक्को ही रह जाता, तो एक इहदा भी घट जाता है। तो जे घट गया तो यदा एक पूरा करना, पहला अपने +1 करना, फिर /2 करना, आंसर 3 आ जाऊगा। ठीक है जी, इस तरीके आप करना है, क्योंकि जो कॉम्बीनेशन बन गए की होणगे 1 ते 16 कॉम्बीनेशन, 2 का 8 ना कॉम्बीनेशन, 4 का 4 ना कॉम्बीनेशन, का टोटल किन्ने कॉम्बीनेशन बनणगे 3। तो आप इहनूं किवें सॉल्व करांगे, नंबर ऑफ फैक्टर +1/2 जो n की होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इस बेस ते क्वेश्चन है जी अपने कोले, for n equal to 560 how many factors of n are such that product of these two number equal to 560। कहता n ਦੇ किन्ने फैक्टर होणगे जिहदे विचों उन्हां दी मल्टीप्लाई करिए 560 आ जी, मतलब कि 560 ਨੂੰ ਆਪਾਂ किन्ने वेज नाल मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ਇਹਦਾ मतलब यही है। तो देखो जी, सब तो पहले ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ फैक्टर्स, फैक्टर का 1 आ जाऊगा, जे 1 आया तो 560 भी आऊगा फैक्टर। ठीक है, जे आप एवें करते हैं, आप सिंपल एवें लिख लेंगे, 1 ते किन्ने आ गए 560 आ गए, 2 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ आ जाऊगा 280 आ जाऊगा। या फिर आप की करते हैं, आप क्योंकि जो नंबर बड़ा आ जू फिर आप किवें करांगे, टाइम बहुत वेस्ट हो जाऊगा, तो पहला आप प्राइम फैक्टराइजेशन ही करांगे, जिवें आप अगे करते हैं। देखो जी किवें 56 का मतलब की है 7 × 8 है, मतलब कि 7 तो सिंगल नंबर है, 2 की क्यूब लग जूगी, नाल की लग जूगा 5 की पावर 1, तो नाल की आ जाऊगा 2 आ जाऊगा। तो इन द एंड 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्योंकि मैं डिवाइड किया 56 ते 10 दे विच, मैं पार्ट च डिवाइड किया, 10 नूं किया मैं 2 ते 5 दे विच, 56 नूं किया मैं 7 ते 8 दे विच, 8 कितना मेरा 2 की क्यूब, तो 2 की पावर 4 हो गई, 5 ते 7 आ गया। ठीक है जी, इस तरीके नाल आ चीज़ मैं लिख ली। हुण इहदे नंबर ऑफ फैक्टर्स किन्ने आउणगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स का आपां फॉर्मूला पता है, बिल्कुल आसान है जी, जिन्नी इहदी पावर हुंदी है उहदे विच आपां एक ऐड कर देंगे 5, पावर 1 है 1 ऐड करता 2, पावर 1 है 1 ऐड करता 2, 20 टोटल फैक्टर आ गए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए। हुण आपां देखना हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ n, तो जिन्ने फैक्टर होंगे ने /2 कर देंगे जी आप, तो किन्ने पेयर बनणगे अपने कोले 10 पेयर बनणगे, जिहदे नाल की हो जाऊगा अपने कोल
ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 560 ਆਊਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ 10 ਪੇਅਰ ਬਣਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਰ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ 20 ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਡਾਊਟ ਹੈ। 560 ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 1 ਤੇ 560 ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹਦੇ। 2 ਤੇ 280 ਲਿਖਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਫੈਕਟਰ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਫੈਕਟਰ ਮੈਂ 2 ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 560 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਹੀ 280 ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ 20 ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਬਾਈਨ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। 10 ਫੈਕਟਰ 10 ਨੰਬਰ 10 ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ 560 ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਏ 2 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨੈਕਸਟ for n equal to 324 how many factors of n such that product of these two number equal to 324। ਹੁਣ 324 ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 18 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰਸ ਪਲੱਸ 1/2 ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 324 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 18 ਗੁਣਾ 18 ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ 18 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 2 ਗੁਣਾ 9, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਗੁਣਾ 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, 2 ਗੁਣਾ 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਤਾਂ 324 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਇੰਟੂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ 3 + 5 प्लस की करेंगे 1 बाय करेंगे 2। तो कितना बन जाऊगा जी 3 × 5 15 + 1 16/2 = 8। तो नंबर ऑफ फैक्टर जिहदे विच इन्हां दी जिहड़ी मल्टीप्लाई है 324 वालों किन्ने होणगे जी, वो 8 होणगे। ठीक है जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन ने। दोबारा समझ लो कंसैप्ट नूं। ये तुहानूं लैक्चर कम से कम 2 या 3 बार देखना पऊगा तां तुहाडे दिमाग 'च कंसैप्ट बैठणगे। अगे देखते हैं जी आपां। नैक्सट फिर कॉन्सैप्ट है जी अपने को। कॉन्सैप्ट की है अपने को नंबर ऑफ वेज इन विच ए कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर विच आर प्राइम टू ईच अदर इज 2 दी पावर n-1 वेयर n इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इन द एक्सप्रैशन फॉर n। की मतलब है जी इस कॉन्सैप्ट का, ये समझते हैं आप ध्यान। हाँ जी, देखो इसका की मतलब है जी कि मैं समझांगे आप इस चीज़ में। मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल नाल दसदा। देखो पहला की लिखा नंबर ऑफ वेज इन विच ए कॉम्पोजिट नंबर। पहला एक आप कॉम्पोजिट नंबर ले लेने हैं, लेट्स से 24 कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर। कहना आप इहनूं इहो जिहे 2 फैक्टर आप रिजॉल्व कर रहे हैं विच आर प्राइम टू ईच अदर। मतलब कि इसका मतलब की है प्राइम टू ईच अदर कि उन्हों का HCF की होवे 1 होवे ते उन्हों की मल्टीप्लाई कितनी बनती होवे 12। दो कंडीशन आपने सैटिस्फाइड करनिया ने। तो यदा अपन फॉर्मूला गिवन है इज 2 × n-1। उरे n की है इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर इन द एक्सप्रैशन फॉर n। सुनो मैं सारी एग्जाम्पल नाल दसदा। सब तो पहला देखो 24 नूं आपां किवें 24 नूं आपां किवें लिखांगे 2 दी क्यूब इंटू 3। ठीक है जी, 8 × 24 बन जूगा। तो उरे जिहड़े प्राइम फैक्टर्स किहड़े आ गए ये, एक 2 आया, एक की आया 3 आया। यही 2 प्राइम फैक्टर्स आए ने। तो इट मीनस उरे अपने कोले n की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। इट मीनस n की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। तो जो मैं इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर निकालूंगा तो कितना आ जाऊगा, मतलब कि फैक्टर विच आर प्राइम टू ईच अदर कितने आएंगे 2 दी पावर 2 - 1। सॉरी -1 नीचे नहीं है, ऊपर है, ध्यान रखिए हुए। तो आ जाऊगा 2 दी पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। हम आप चैक करांगे जी 24 किवें किवें बनता अपने को। 24 बनता अपने को ये कॉम्बीनेशन होंगे ने 1 ते 24, 2 ते 12, 3 8, 4 6। ठीक है जी, यही कॉम्बीनेशन ने। तो हम देखो ये किहड़े आपस के नंबर की ने प्राइम टू ईच अदर ने, मतलब कि जिन्हों का HCF कितना 1 है, इन्हों का HCF कितना है जी 1। उरे ये मतलब नहीं है कि 1 अपने कोल की है प्राइम नंबर है या नहीं है, ये चीज़ नहीं आप देखनी। आप देखने कि उन्हों का HCF 1 हो, क्योंकि प्राइम टू ईच अदर का मतलब की होंगे उन्हों का HCF की हो 1 हो। तो इन्हों का HCF 1 है, इन्हों का HCF 1 नहीं है।
इन्हों का HCF कितना 1 है, ठीक है जी। नीचलिया का HCF 1 नहीं हैगा, तो सिर्फ 2 ने अपने को 1 ਤੇ 1, ठीक है जी। तो इस ये क्वेश्चन का पूरा मतलब ये सीगा इस कॉन्सैप्ट का। तो इस कॉन्सैप्ट के बेस ते क्वेश्चन है अपने को, लास्ट क्वेश्चन है जी ये आप देखते हैं। देखो जी की है क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज n इक्वल टू 720 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर विच आर प्राइम टू ईच अदर। फिर अपने 720 लिया, क्योंकि कॉन्सैप्ट समझना है अपने। देखो जी की होगा 2 दी पावर 4, 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ 5। ਤਾਂ ਉਰੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, 3 ਆ ਜਾਊਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 3 ਨੇ ਸਿਰਫ, 2 3 ਤੇ 5। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼ n ਇਕੁਅਲ ਟੂ 720 ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਫੈਕਟਰ ਵਿਚ ਆਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 720 ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ a ਗੁਣਾ b ਹੋਵੇ, ਤੇ a ਤੇ b ਕੀ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ HCF ਕੀ ਹੋਵੇ 1 ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਮਾਈਨਸ 1, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 मतलब कि 4। ठीक है जी, तो 4 अपने को आंसर है। चैक भी एक बार आप भी करते हैं 720 के फैक्टर किहड़े किहड़े बन सकते हैं। सब तो पहला 1 ते 720 खुद हो गया, सैकेंड पेयर देखा आप 2 ते 360 आ गया, थर्ड पेयर 3 ते कैंसल होगा जी, ये बन जूगा अपने को 240। फिर बनूगा जी 4 ते डिवाइड करांगे आप इनू 180, 5 ते करांगे आप 5 ते, ये बन जूगा 1, 14 5 70 145, 14 चौक 56 नहीं 145 गलत है जी, 700 में करेंगे 140 144 144। ठीक है जी, 5 ते करेंगे 144 आ जाऊ, 6 ते करेंगे 120 आ जाऊगा, 7 ते डिवाइड हो नहीं सकता है, 8 ते चेक कर लें आप, 8 ते हो जाऊगा जी 90 आ जाऊगा, 9 ते करांगे 80 आ जाऊगा, 10 ते करांगे तो 72 आ जाऊगा, 11 ते होंदा नहीं, 12 ते 60 आ गया, 13 14 ते 14 ते होंदा नहीं, 15 ते 15 ते भी नहीं होंदा ये, 15 ते चेक करना पऊगा, 13 ते नहीं होंदा, 14 ते नहीं होंदा, 14 5 70 700 का उत्थे हो जाऊगा, 15 ते चेक करांगे 15 चौकी 60 15 ते हो जाऊगा जी, ये 15 चौक 60 48 आ जाऊगा। नैक्सट 16 ते करांगे, 16 चौकी 64 16 16 5 80 45 आ गया, 17 ते नहीं होंदा जी, ये 18 ते हो जाऊगा, 18 ਦੇ ਨਾਲ 40 आ जाऊगा, उस तो बाद 19 ਤੇ नहीं होंदा, 20 ਤੇ हो जाऊगा जी, ये कितना आ जाऊगा 36 आ जाऊगा। अगे चेक करते हैं जी आप, 21 ਤੇ नहीं होना, 22 ਤੇ नहीं होना, 23 24 ਤੇ होगा, ये 30 आ जाऊगा, 25 ਤੇ नहीं होना, 26 नहीं, 27 ਤੇ भी नहीं, 28 नहीं होंदा जी, 28 ਤੇ भी नहीं होंदा, 29 30 ਤੇ हो जाऊगा, तब तो 24 आ जाऊगा। बस यही फैक्टर्स बनने जी ये, तो एक और 24 ਤੇ 30 रह गया सीगा, वो ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 24 एंड 30। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ HCF ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ, 1 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ HCF 1, ਇਸ ਦਾ ਬਣ ਜੂ HCF 1, ਇਸ ਦਾ ਵੀ HCF 1 ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ, 1 2 3 4 4 ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ।
ठीक है जी। तो ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 3 ਆ ਗਏ 2 ਇਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਉਨੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਫੈਕਟਰਸ ਦਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਨੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਿਓ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।